بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن فروغ اردو کی جانب سے JSSC CGL کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ٹیسٹ نمبر 19 ہے۔ CGL کے حوالے سے 100 سوالات پر مبنی یہ سوال مع جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم لوگ اسی پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1 ہے، سیر کا مترادف ذیل میں کیا ہے؟ A ہے سیاحت، B ہے سپاٹا، C ہے ویر، D ہے گھومنا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سیر کے ساتھ ہم سیر و سیاحت مترادف الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپشن A اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بجنور مغربی ہندی کے کس علاقے میں آتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مغربی ہندی کے علاقے میں آتا ہے، لیکن وہ علاقہ کون سا ہے جہاں بجنور کا تعلق ہے؟ آپشن A برج بھاشا، B ہے کھڑی بولی، C ہے ہریانوی، D ہے قنوجی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا B کھڑی بولی۔ کھڑی بولی کا علاقہ ہے بجنور۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں خالص نظم نگار کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی 4 میں ایک شاعر ایسے ہیں جو نظم کے شاعر ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ A ہے اظفر جمیل، B ہے مرزا غالب، C ہے میر تقی میر، D ہے وہاب دانش۔ اظفر جمیل شاعری میں غزلیں بھی کہتے ہیں خوب، اور بنیادی پہچان غزلوں کی وجہ سے ہے۔ آپشن D بالکل صحیح جواب ہے۔ وہاب دانش کی بنیادی پہچان نظموں کی وجہ سے ہے، وہ بھی علامتی نظمیں۔ آپشن D صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، لیمینیٹڈ گرل کس کا ناول ہے؟ آپشن A ہے ممتاز شارق، B ہے عبدالصمد، C ہے اختر آزاد، D ہے ذکی انور۔ آپشن C صحیح جواب ہے۔ ڈاکٹر اختر آزاد کا ناول ہے لیمینیٹڈ گرل، جن کا تعلق جمشید پور سے ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کرونا کے حوالے سے ایک ناول لکھا ہے جس کا نام ہے لاک 360۔ 2 ناول ہیں اور 2 ناول ابھی منتظر اشاعت ہیں، وہ آج نہیں تو کل وہ شائع ضرور ہوں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، میر کب پیدا ہوئے؟ آپشن A ہے 1723، B ہے 1823، C ہے 1623، D ہے 1723۔ D آپشن ہے 1732 جو غلط ہے۔ صحیح جواب ہے 1723 عیسوی۔ آپشن A بالکل اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، لفظ نقل کا مترادف ذیل میں کیا ہے؟ آپشن A ہے چوری، B ہے حرکت، C ہے چکاری، D ہے ڈکیتی۔ نقل کے ساتھ ہم حرکت استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں نقل و حرکت۔ آپشن B صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، ریت پر دوڑتے قدم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ریت پر دوڑتے قدم وہاب دانش کا شعری مجموعہ ہے۔ آپشن A صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، میر کا حافظ محمد حسن سے کیا رشتہ تھا؟ میر کا محمد حسن سے رشتہ تھا، سوتیلے بھائی تھے وہ دونوں۔ آپشن B صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، مرزا غالب کس طرح کے شاعر تھے؟ آپشن A ہے فلسفی، B ہے دقیانوسی، C ہے صوفی، D ہے سوقیانہ۔ آپشن A صحیح جواب ہے۔ فلسفی شاعر تھے۔ دقیانوسی بولتے ہیں جو پرانے خیالات کا ہو، صوفی بولتے ہیں جو تصوف پر شعر لکھے، سوقیانہ بولتے ہیں بازارو ٹیپ میں۔ تو وہ فلسفی شاعر تھے۔ فلسفے کو داخل کرنے میں مرزا غالب کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ آپشن A صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، کون سا مغربی ہندی کا علاقہ نہیں ہے؟ مغربی ہندی میں جو علاقے آتے ہیں اس میں پوچھ رہا ہے کون سا علاقہ نہیں ہے۔ A ہے بنارس، B ہے کانپور، C ہے علی گڑھ، D ہے میرٹھ۔ بنارس نہیں ہے، یہ اودھ کا علاقہ تھا ایک زمانے میں، بلکہ وہ بھی سائٹ کا علاقہ تھا۔ تو بنارس ہم، کیونکہ کانپور، علی گڑھ، میرٹھ یہ تینوں مغربی ہندی کے علاقے ہیں۔ کانپور قنوج کی وجہ سے، علی گڑھ برج بھاشا کی وجہ سے، اور میرٹھ کھڑی بولی کی وجہ سے۔ بنارس اس میں آڈ ہے، مطلب آپشن A صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، جدید اردو نظم نے کہاں کا اثر قبول کیا؟ جدید اردو نظم نے مغرب کا اثر قبول کیا تھا، ویسٹرن کلچر کا اثر قبول کیا تھا، لہٰذا آپشن D صحیح جواب ہوگا۔ مغرب یعنی انگلینڈ وغیرہ کا اثر انہوں نے قبول کیا تھا۔
12 नंबर है इल्म का मुतरादिफ क्या है। इल्म का मुतरादिफ अमल ए है, बी दौलत, सी शोहरत, डी हिकमत। इसका सही जवाब होगा हिकमत, डी। इल्म व हिकमत, डी सही जवाब है। सवाल नंबर 13 है फैज़ के मजमूए मज़ामीन का नाम ज़ेल में क्या है। फैज़ ने तनक़ीद भी लिखी थी, क्रिटिसाइज़ किया था, क्रिटिसिज्म पर काम किया उन्होंने, तो उनके किताब छपी है उनकी एक, उसका नाम है मताए लोहो कलम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है इसम में इस्म मुसग़्गर की कौन सी किस्म नहीं है। ऑप्शन ए है इस्म ज़ात, बी है कुनियत, सी है तखल्लुस, डी है लक़ब। कुनियत, तखल्लुस, लक़ब ये इसमें मारफा की किस्में हैं। इसमें ज़ात इसम मुसग़्गर के ऊपर की चीज़ है, लिहाजा ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 15 है एक ज़रा सी बारिश कहाँ से शाये हुआ था। प्रकाश फ़िक्री का दूसरा शेरी मजमूआ एक ज़रा सी बारिश जमशेदपुर से शाये हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 16 है मन गढ़त बात किस सिन्फ की खुसूसियत है। ऑप्शन ए खाका, बी खुद नविश, सी अफसाना, डी रिपोर्टाज। मन गढ़त बात अफसाने की खुसूसियत है। ऑप्शन सी सही जवाब है। मन गढ़त बात में 3 चीज़ें और आती हैं, 3 असनाफ और आती हैं, दास्तान, नावल और अफसाना, और चौथा है ड्रामा। तो यहाँ पे अफसाना सही जवाब है। सवाल नंबर 17 है ज़ैल में कौन सी किताब गालिब की सवानेह है। मिर्ज़ा गालिब की सवानेह कौन सी किताब है। यादगार गालिब, फ़लसफ़े गालिब, अहवाल गालिब, महासिने कलाम गालिब। इसमें ए सही जवाब है यादगार गालिब, जिसके लिखने वाले हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये किताब उनकी सवानेह है जो 1897 में लिखी गई थी। सवाल नंबर 18 है दक्कन में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया किसने पेश किया। अली मोहम्मद फ़ारसी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन ख़ान, ज्ञानचंद जैन। तो दक्कन में जो पेश किया है उसका नाम है नसीरुद्दीन हाशमी, बी सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है प्रकाश फ़िक्री का इंतकाल कब हुआ। प्रकाश फ़िक्री का इंतकाल 2008 में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 20 है निकातुश शोरा किस ज़बान में है। अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी। निकातुश शोरा 1752 में लिखा गया मीर तक़ी मीर का पहला तज़किरा है। तज़किरे की किताब है वो फ़ारसी ज़बान में है लेकिन उर्दू शायरों से मुताल्लिक़ है, लिहाजा ऑप्शन बी सही जवाब है फ़ारसी। सवाल नंबर 21 है कहावत दुरुस्त करे घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 22 है नज़्म जदीद की करवटें किसकी किताब है। वज़ीर आगा, अली मोहम्मद फ़ारसी, वहीद कुरैशी, मुमताज़ हुसैन। वज़ीर आगा की किताब है नज़्म जदीद की करवटें। 23 नंबर है उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार कौन है। यहाँ लफ्ज़ बाकायदा आ गया है, लिहाजा आप इसमें निशान लगाइएगा प्रेमचंद को। प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 24 नंबर है ड़ी लगाकर क्या बनाते हैं। इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्गर, इसमें आला, इसमें सौत। हुड़ी लगाकर इसमें मुसग़्गर बनाते हैं, पलंग से पलंगड़ी वग़ैरह। सवाल नंबर 25 है सने पैदाइश को के एतबार से अव्वलियत किसको हासिल है। मतलब पहले कौन पैदा हुए सने पैदाइश के हिसाब से। अख्तर आज़ाद, प्रकाश फ़िक्री, सिद्दीक़ मुजीबी, हुमायूं अशरफ। ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रकाश फ़िक्री पहले पैदा हुए थे 1930 में ग़ालिबन, तो प्रकाश फ़िक्री पहले हैं। उसके 1 साल बाद सिद्दीक़ मुजीबी हुए थे और हुमायूं अशरफ, अख्तर आज़ाद तो अभी के हैं, मतलब 50-60 के दहाई में ये लोग पैदा हुए होंगे, लिहाजा प्रकाश फ़िक्री इन चारों में पहले पैदा हुए हैं। सवाल नंबर 26 है गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ। इसमें खार का क्या माना है। जलील होने वाला, मुब्तला होने वाला, शर्मिंदा होने वाला, खाने वाला। वजीफ़ा खार, वजीफ़ा मतलब स्कॉलरशिप, खार मतलब खाने वाला। ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 27 है लफ्ज़ रिंद की ज़िद क्या है।
रिंद बोलते हैं शराबी को, उसकी ज़िद हो जाएगी पारसा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रिंद का पारसा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 28 नंबर है, सुहेल बुखारी के बकौल उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई। सुहेल साहब कहते हैं उर्दू उड़ीसा में पैदा हुए, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है, उड़ीसा। सवाल नंबर 29 है, झैल में डाल्टनगंज का अदीब कौन है। नादिम बल्खी, कैसर जमा, हुमायूं अशरफ, अख्तर आज़ाद। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रोफेसर नादिम बल्खी। GLA कॉलेज डोरंडा वहाँ थे डाल्टनगंज में, तो इनका ताल्लुक़ भी डाल्टनगंज से है, वही दफन है। इंतकाल उनका हुआ था 2006 में। सवाल नंबर 30 है, छोटी सी बात को बड़ा करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है, दिल में काला है कुछ। बी है, बात का बतंगड़। सी है, अक्ल बड़ी की भैंस। डी है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा। तो छोटी सी बात का जो बतंगड़ बनाते हैं उसका बोलते हैं बात का बतंगड़। बी सही जवाब है। सवाल नंबर 31 है, जिस नावल में इश्क व मोहब्बत की बातें हों उन्हें नावल के किस ज़ुमरे में रखेंगे। जिसमें इश्क व मोहब्बत की बातें होंगी उसको इश्किया नावल नहीं कहेंगे बल्कि रूमानी नावल कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 32 है, झैल में मुश्किल पसंद शायर कौन है। फैज़, यगाना, गालिब, मखदूम। गालिब के बारे में ये बातें हैं कि वो मुश्किल पसंद करते हैं, लिहाजा ऑप्शन सी सही जवाब होगा 32 नंबर का। 33 नंबर है, झैल में सियालकोट में कौन पैदा हुआ। झैल बोलते हैं नीचे, मतलब वो लिखा हुआ बराबर में है उसको, लेकिन झैल मानेंगे, एग्ज़ाम में झैल लिखा रहेगा। बाला का माना होता है ऊपर। तो झैल में सियालकोट में कौन पैदा हुआ। इकबाल, नज़ीर, मजाज, जानिसार अख्तर। इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे, हम जानते हैं, बिल्कुल ए सही जवाब है। सवाल नंबर 34 है, नफ़रत और प्यार के लिए किस इस्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें तस्गीर, इसमें सौत, इसमें लक़ब, इसमें आला। इसमें ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इसमें तस्गीर मुसग़्गर से है, छोटंकी बोलते हैं, छोटे से छोटंकी वगैरह, तो ये तस्गीर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 35 है, उर्दू नावल में शहर के उन्वान से किसने PhD की है। PhD की है अख्तर यूसुफ साहब ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 35 का ऑप्शन डी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की थी अख्तर यूसुफ, जिनका मजमूआ है जलता हुआ सैयारा, और उनका एक मशहूर अफसाना है गीदा और कहबा खाना। सवाल नंबर 36 है, कपड़े धुल गए या मकान बन गया, इसमें कौन सा फेल है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब है, फेल मजहूल इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 37 है, झारखंड किससे अलग होकर बना। झारखंड बिहार से अलग होकर बना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 38 नंबर है, हरम से क्या मुराद है। हराम है, बेहुरमती है, मुनाकिहत है, काबा है। हरम से मुराद काबा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 39 है, उर्दू शायरी का बाबा आदम कौन है। वली दकनी, मीर तकी मीर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मिर्ज़ा गालिब। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी है, लिहाजा वली दकनी ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 40 है, वालदा मरहूमा की याद में इकबाल ने नज़्म किसकी याद में लिखी। हज़रत बीबी, सैयदा बीबी, खानम बीबी, इमाम बीबी। ऑप्शन डी सही जवाब है, इमाम बीबी, या उनकी माँ का नाम था, उन्हीं की याद में लिखी। 41 नंबर है, लड़ी में मोती पिरोना किस सिन्फ का माना है। लड़ी में मोती पिरोना नज़्म का माना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 42 है, झैल में अलग क्या है। अनपढ़, बेअदब, बेमिसाल, मफाद परस्त। बे ABC जो है वो पहले लगा है, परस्त बाद में लगा है, लिहाजा ऑप्शन डी सही जवाब है, मफाद परस्त जो अलग है।
43 नंबर है आरज़ू का माना ज़ेल में क्या नहीं है, बल्कि होना चाहिए क्या है। आरज़ू के माना होता है ख्वाहिश, तमन्ना। ऑप्शन ए सही जवाब है। इसमें नहीं काट दीजिए और ऑप्शन ए पर टिक लगाइए, यही सही जवाब है। सवाल नंबर 44 है वहाब अशरफी किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। वहाब अशरफी रांची यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता थे, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 45 है इंसान के दाखिली ज़हन की तरफ जिस नावल में इशारा हो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं नफ्सियाती नावल। ऑप्शन ए सही जवाब है, नफ्सियाती नावल कहेंगे। सवाल नंबर 46 है इकबाल ने कौन सी डिग्री नहीं हासिल की। पीएचडी की, एमए भी किया, बैरिस्ट्री भी की, आलमियत। ऑप्शन डी नहीं की, ऑप्शन डी सही जवाब है। 47 नंबर है ज़ैल में कौन सी कबायली बोली नहीं है। खड़िया, संथाली, मुंडारी, उड़िया। तो खड़िया, संथाली, मुंडारी है, उड़िया नहीं है। उड़िया उड़ीसा की है, लिहाजा ऑप्शन डी सही जवाब है, उड़िया। 48 नंबर है ज़ैल में अलग सिन्फ कौन सी है। दास्तान, गज़ल, अफसाना, नावल। ऑप्शन बी सही जवाब है, गज़ल इन सबसे मुख्तलिफ है, वो शेरी सिन्फ है और बकिया नसरी सिन्फ है, लिहाजा ऑप्शन डी 48 का सही जवाब है। 49 नंबर है ग़ियास अहमद कद्दी कब पैदा हुए। ग़ियास अहमद कद्दी 1928 ईस्वी में पैदा हुए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1928 ईस्वी। 50 नंबर है इहाम गोई के बाद की शायर की निशानदेही कीजिए। ज़ेल में कौन सा इहाम गो शायर है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे इहाम गो शायर कौन है। मीर नहीं है, नाजी हैं, मजमून हैं, यकरंग हैं। तो ऑप्शन ए मीर सही जवाब होगा। 51 नंबर है मिर्ज़ा गालिब के वालिद का निकाह किस शहर में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब की नानी घर था कहाँ, आगरा, लिहाजा आगरा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। 52 नंबर है ज़ैल में अलग क्या है। बदजन, बदशक्ल, बदचलन, बदीही। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, बदीही अलग है। सवाल नंबर 53 है खालिस अफसाने की निशानदेही कीजिए। 4 यहाँ दिया है, 3 नावल है, 1 अफसाना है। इब्नुल वक्त नावल है, उमराव जान नावल है, टोबटेक सिंह अफसाना है, फायर एरिया नावल है, ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 54 है इल्म माशियात के हवाले से इकबाल ने कौन सी किताब लिखी है। ऑप्शन बी सही जवाब है, इल्मुल इक्तिसाद। इक्तिसाद इसी को बोलते हैं, इल्मुल इक्तिसाद, यही सही जवाब है। सवाल नंबर 55 है क़िस्सा बेसमत ज़िंदगी का किसकी खुद नविश्त है। ये खुद नविश्त है वहाब अशरफी साहब की, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 56 नंबर है ग़ियास अहमद कद्दी के बड़े भाई का क्या नाम था। ग़ियास अहमद कद्दी के छोटे भाई का नाम तो था इलियास अहमद कद्दी, लेकिन बड़े भाई का नाम था कमरुद्दीन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 57 है कुड़ुक के ख़ानदान में कौन नहीं है। कुड़ुक के ख़ानदान में कौन नहीं है। ऑप्शन ए है टोप्पो, बी है अम्बा, सी है खलको, डी है मिंज। टोप्पो, खलको, मिंज आता है, अम्बा नहीं आता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 58 नंबर है ज़ैल में मुनफरिद क्या है, यानी अलग क्या है। दास्तान, नज़्म, कसीदा, गज़ल। इसमें नज़्म, कसीदा, गज़ल ये शेरी सिन्फ है, ये अलग है, दास्तान अलग है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। 59 नंबर है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी किसका मशहूर अफसाना है। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी ग़ियास अहमद का अफसाना है, ऑप्शन डी सही जवाब है। 60 नंबर है क्लासिकी शोरा ने गज़लों के अशार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने मुतय्यन की है। ज़्यादा से ज़्यादा 17 है और कम से कम 5 है, ऑप्शन डी सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 61 है मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए। यहाँ तारीख़ ईस्वी में नहीं है बल्कि हिजरी में है। कब पैदा हुए थे, 8 रजब 1212 हिजरी को पैदा हुए थे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 62 नंबर है अलग का इंतखाब करें। ज़ेल में अलग क्या है उसका इंतखाब करना है। नालायक, नादान, नाजायज़, नामियाती। नामियाती एक अलग माना देता है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। 63 नंबर है इकबाल सबके लिए किसकी किताब है। इकबाल सबके लिए फरमान फतेहपुरी की किताब है, ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 64 है इलियास अहमद कद्दी कहाँ पैदा हुए।
यहाँ कहीं झारखंड का नामो निशान नहीं है, लिहाजा अंडरस्टूड बात है ये कि बिहार में पैदा हुए। ऑप्शन ए सही जवाब है। 65 नंबर है, शायरी का सबसे अहम जुज़ क्या होता है? शायरी का सबसे अहम जुज़ होता है काफ़िया। ऑप्शन ए सही जवाब है। बग़ैर रदीफ़ की गज़ल होगी, बग़ैर मतले की होगी, बग़ैर मक्ते की हो जाएगी, बग़ैर काफ़िया के शायरी हो ही नहीं सकती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 66 है, इकबाल शनास के हवाले से कौन मशहूर हैं? ऑप्शन बी इसमें सही जवाब है, समीउल हक़ साहब। ऑप्शन बी सही जवाब है। इकबाल शनास थे समीउल हक़ साहब, रांची कॉलेज से वाबस्ता थे। 67 नंबर, मुन्नी बाई किस अफसाने का किरदार है? मुन्नी बाई परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी का किरदार है। ऑप्शन डी सही जवाब है। 68 नंबर है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, इस शेर में किस नुक्ते की तरफ इशारा है? इसमें वादा खिलाफ़ी की तरफ इशारा है। महबूब ने वादा कर लिया है कि वो आएगा लेकिन वो नहीं आता है, और उसके ना आने की वजह से सुबह है जो चाह रही है, सुबह की ख्वाहिश है कि उसके महबूब से मुलाकात हो जाए, दीदार हो जाए, उसके बाद ही हम सुबह होंगे। लिहाजा वो बार बार गुज़र रही है सुबह, लेकिन वो महबूब उसका नहीं आता है, यानी वादा खिलाफ़ी करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। 69 नंबर है, ज़ख्म किस फिक्शन निगार का नावल है? ज़ख्म इलियास अहमद गद्दी का नावल है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 70 नंबर है, ज़ेल में दुरुस्त क्या है? हम ख्याल, हम ख्यालात, हम तख़य्युल, हम ख्याल ए सही जवाब है, बिल्कुल ये दुरुस्त है। बकिया हम ख्यालात नहीं होता है, हम तख़य्युल नहीं होता है, हम तख़य्युलात नहीं होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 71 नंबर, मिर्ज़ा गालिब की वालदा का क्या नाम था? मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम था इज़्ज़तुन्निसा। यहाँ शोहरतुन्निसा, दौलतुन्निसा, उजलतुन्निसा दिया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, इज़्ज़तुन्निसा। सवाल नंबर 72 है, गालिब अपना तखल्लुस शायर अपना तखल्लुस कहाँ इस्तेमाल करता है? शायर अपना तखल्लुस मक्ता में इस्तेमाल करता है। मक्ता हो गया, मक्ता होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। 73 नंबर है, जिंदा रूद क्या है? जिंदा रूद सवाने है, इकबाल की सवाने हैं जो उनके बेटे ने जावेद इकबाल ने तरतीब दी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 74 है, हो के बोलने वाले किस इलाके में कसरत से मौजूद हैं? हो के बोलने वाले कोल्हान में मौजूद हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 75 है, ज़की अनवर पर किसने किताब नहीं लिखी है? 3 किताबें हम जानते हैं कि ज़की अनवर के हवाले से आई है। हुमायूं अशरफ की आ चुकी है, शब्बीर अहमद की आ चुकी है, अख्तर आज़ाद की आ चुकी है। बी है मोहम्मद कलीमुद्दीन, इनकी किताब नहीं आई है। ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 76 है, सहदेव किस नावल का मरकज़ी किरदार है? सहदेव फायर एरिया का मरकज़ी किरदार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 77, फसीहुद्दीन बल्खी किसके रिश्तेदार थे? फसीहुद्दीन बल्खी नादिम बल्खी के रिश्तेदार थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 78 है, मिसेस जॉन के अलावा शीन अख्तर का कौन सा मशहूर अफसाना है? तो मिसेस जॉन का एक अफसाना और मशहूर है जिसका नाम है ख़ानदान की नाक। ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 79 है, मेरा दोस्त तलाश माश के लिए कोशिश कर रहा है, इसके लिए कौन सा मुहावरा दुरुस्त है? हाथ पाँव मारना, ख्याली पुलाव पकाना, दिन को तारे नज़र आना, आस्तीन चढ़ाना। ऑप्शन ए सही जवाब है, हाथ पाँव मारना। 80 नंबर है, गज़ल के पहले शेर के बाद जब एक और मतला आए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ज़ेब मतला। सवाल नंबर 81 है, शीन अख्तर का इंतकाल कहाँ हुआ? शीन साहब का इंतकाल रांची में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। 82 है, हमनवा का माना क्या होता है? हमनवा मतलब हम आवाज़ जहाँ लिख रहा है, हम जुल्फ़ है, हम पेशा है, हम माना है। नवा मतलब आवाज़ होता है, तो उसका माना होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हम नवा हम आवाज़। 83 नंबर है, झारखंड का मतलब क्या होता है? बंजर ज़मीन, संगलाग ज़मीन, रेतीली ज़मीन, मस्जिदों की ज़मीन। तो झारखंड का मतलब होता है बंजर के बजाय यहाँ पे अगर ये झाड़ उड़ की ज़मीन कहलाया जाए तो ज़्यादा अहम होगा, और उसी को हम लोग सही मानेंगे। ऑप्शन ए को बंजर के बजाय उसमें आप कह दीजिए कि झाड़ या जंगलों की ज़मीन है, ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। 84 नंबर है, ज़ैल में किस अदीब का इंतकाल हज़ारीबाग में हुआ? एक सवाल ये पहले आ चुका था, कलीम अहमद आजिज़ जो बिहार के शायर थे।
اور جو میر کی پیروی کرتے ہیں ان کا انتقال ہزاری باغ میں ہوا تھا۔ آپشن اے سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 85 ہے، ذیل میں کس ادیب کا انتقال جمشید پور میں نہیں ہوا؟ ذکی انور کا جمشید پور میں ہوا، منظر کلیم کا جمشید پور میں ہوا، منظر کاظمی کا جمشید پور میں ہوا، وہاب اشرفی کا پٹنہ میں ہوا۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ 86 نمبر ہے، آدمی زمین میں کب گڑتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ شرمندہ ہوتا ہے، تو آپشن اے صحیح جواب ہے۔ بی نہیں ہوگا، جب آدمی مر جاتا ہے، جب آدمی بے روزگار ہوتا ہے، جب آدمی سکون محسوس کرتا ہے۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو زمین میں گڑ جاتا ہے۔ 87 نمبر ہے، کس ادیب کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مل چکا ہے ذیل میں؟ اس میں آپشن سی صحیح جواب ہے، الیاس احمد قدی کو ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی کا ایوارڈ مل چکا ہے۔ 88 نمبر ہے، نثری نظم کا شاعر کون ہے؟ نثری نظم کا شاعر اس میں فیض نہیں ہے، اقبال نہیں ہے، چکبست نہیں ہے، سجاد ظہیر اس کا صحیح جواب ہے۔ 89 ہے، نقش فریادی کس کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ نقش فریادی فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ 90 نمبر ہے، بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء اختر اونینوی کی کتاب ہے۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 91 ہے، افسانہ کس زبان کا لفظ ہے؟ افسانہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ 92 نمبر ہے، ذیل میں کون سا ناول 3 ابواب پر مشتمل ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ناول فائر ایریا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ 93 نمبر، ذیل میں کس کا شمار کلاسیکی عہد کے شعراء میں ہوتا ہے؟ ذیل میں غالب، فیض، اقبال، فیض دوبارہ آ گیا ہے، غالب کا شمار کلاسیکی عہد کے شاعر میں ہوتا ہے، لہٰذا آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 94 ہے، اردو نظم کا آغاز سب سے پہلے کہاں ہوا تھا؟ اردو نظم کا آغاز سب سے پہلے جنوبی ہند میں ہوا تھا۔ آپشن بی صحیح جواب ہے، جنوبی ہند یعنی دکن میں ہوا تھا، اور وہیں پہلی جو نظم ملتی ہے چکی نامہ وہیں لکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 95 ہے، آریائی عہد کا پہلا دور کیا کہلاتا ہے؟ آریائی عہد کا پہلا دور قدیم ہند آریائی کہلاتا ہے۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 96 ہے، غالب کو حیوان ظریف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اشعار کے ذریعے وہ قاری کے دلوں کو فرحت بخشتے ہیں، خوشی دلاتے ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ 97 نمبر ہے، میر کے والد نے کس سے علوم متداولہ کی تعلیم حاصل کی تھی؟ شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ 98 نمبر ہے، اردو غزل کا اسلوب کے موضوع پر کس نے پی ایچ ڈی کی؟ منظر کاظمی نے پی ایچ ڈی کی، تو آپشن بی صحیح جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 99 ہے، ذیل میں کس بادشاہ کا چھوٹا ناگپور سے ورود ہوا ہے یعنی گزرا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پٹھوریا کے علاقے سے جو چوک ہے وہاں ایک مسجد بھی ہے، شیر شاہ سوری کی مسجد کے نام سے مشہور ہے وہ۔ آپشن سی صحیح جواب ہے، ان کا گزر ہوا تھا جھارکھنڈ سے۔ سوال نمبر 100 ہے، قدیم ہند آریائی دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ قدیم ہند آریائی دور شروع ہوتا ہے 1500 قبل مسیح۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ آپ کے امتحانات بہت نزدیک ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ میں سے بیشتر لوگوں کا سلیکشن ہو جائے تاکہ آپ اپنا نام، اپنے گھر والوں کا نام، اپنے اساتذہ کرام کا نام روشن کریں۔ پھر ملیں گے ہم کسی اسی طرح ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔